नमस्कार সকলকে हेलो एवरीवन नमस्ते सभी को गुड इवनिंग तो नहीं रहे हैं लेकिन हाँ फिर भी हम कहेंगे तो एक करंट अफेयर आप लोगों के साथ शेयर करनी है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाए 2025 जून यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आ जाए या फिर कोई स्टेट एग्ज़ाम में आ जाए, स्टेट लेवल एग्ज़ाम में मतलब सेट एग्ज़ाम में आ जाए, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर गेट एग्ज़ाम में भी आ जाए आने वाले साल में, जो कि करेंट अफेयर्स है ऑब्वियसली लिटरेचर से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली जो हम करेंगे बंगाली एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये वीडियो रखने वाले हैं। सो प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ, अच्छे से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। और ये बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में कहूँगी, ये 2-4-5 मिनट के अंदर ही ये वीडियो हो जाएंगे कंप्लीट। सो please do like, comment, share and subscribe to SP Literature and hit the bell icon so that you never miss an updates। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए SP लिटरेचर को और जुड़े रहिए। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर এবং সাবস্ক্রাইব করুন আর দেখতে থাকুন SP লিটারেচার, হিট দ্য বেল আইকন যাতে করে কোনো আপডেটস মিস না হয়। আর হচ্ছে যে আজকে আমরা যে আলোচনাটা করব সেটা দুটো ভাষাতেই বলবো, হিন্দি এবং বাংলা, যেটা আর কি খুব একটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার। ইংরেজি সাহিত্যর জন্য অবশ্যই প্রশ্ন আসতে পারে আপকামিং ইউজিসি নেট বা কোনো সেট এক্সাম বা গেট এক্সাম বা আদার্স কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের ক্ষেত্রেও, কারণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট বা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের ক্ষেত্রে, কিন্তু তো আমাদের মনে রাখতে হবে। সো হোয়াট ইজ ইট, সেটা কি? তো প্রথমে আমি বাংলায় বলে নিচ্ছি, তারপর হিন্দিতে বলছি। पहले मैं बंगाली में बोल लेती हूँ, फिर हिंदी में बोलती हूँ। ओके। প্রফেসর গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের নাম তোমরা কম বেশি আমরা সবাই জানি এবং শুনেছি, এবং ওনার কতটা ভূমিকা রয়েছে এবং উনি মানে এখন বর্তমানে আমাদের ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের মধ্যে ওনার একটা নাম খ্যাতি পরিচিতি আছে। তো উনি টপ 10 বুদ্ধিজীবীদের যদি আমরা বলে থাকি তার মধ্যে ওনার নাম আছে, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক সম্মানিয়া ওনার নাম আছে। তো উনি আগামী জুন মাসে 5 তারিখে 5th of June 2025 একটা বিশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত হতে চলেছেন, যেটা হলো হলবার্গ। পুরস্কারটার নাম হলবার্গ এবং এই পুরস্কারের যে মানে এটা মূল্য 5,15,000, কিন্তু এটা যদি ইউরো বা ইউরোটা সম্পূর্ণ যদি আমি যদি ভুল না হয়ে থাকি, ইউরো বা ইউরোপিয়ান ডলারে এটাকে কি বলা হয়, 4.6 কোটি টাকা এটাকে বলা হচ্ছে এর পুরস্কারটার মূল্য। এবং আগামী 5ই জুন নরওয়ের বেরজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠান হবে, আয়োজন করা হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে সেই দেশের কোন দেশের, নরওয়ের বেরজেন বিশ্ববিদ্যালয়, সেই দেশের নরওয়ের কি হচ্ছে যুবরাজ হাকন, যিনি আছেন বিশিষ্ট যুবরাজ, সম্মানীয় যুবরাজ হাকন, তিনি আমাদের সম্মানীয় গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের হাতে তুলে দেবেন এই পুরস্কার। ঠিক আছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। এবং বৃহস্পতিবার হলবার্গ কমিটি গঠিত হয়েছিল 2025 সালে, গত যে বৃহস্পতিবার গেল। আর তার সাথে কি হয়েছে, পুরস্কার বিজয়ী হিসেবে এনার নাম, গায়ত্রী চক্রবর্তীর নামকে কি করা হয়েছে, নামটি প্রকাশ করা হয়েছে। এই পুরস্কার কিন্তু আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজের নোবেল হিসেবেও পরিচিত। তাহলে এই হলবার্গ পুরস্কারকে আমরা কি নামে জানি? এটাকে আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজের নোবেল হিসেবেও পরিচিত এই পুরস্কারকে আরেকটা নাম বলা হয়ে থাকে। তো এই সম্মান পাওয়ার জন্য তাকে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এটাই আমি এখন হিন্দিতে বলে ভিডিওটা অফ করবো। আর এটা অবশ্যই আজকে যে থাম্বনেইল আর টাইটেল থাকবে সেটা কিন্তু অবশ্যই यूजीसी नेटेरही टॉपिक থাকবে करेंट अफेयर হিসেবে। ठीक है, अभी मैं हिंदी में बोलने जा रही हूँ। आप लोगों को यही कहनी है कि आने वाले 5th of June में 2025 में एक सम्मान, एक अवार्ड देने जा रहे हैं। कौन अवार्ड देने जा रहे हैं? नॉर्वे बेरजेन यूनिवर्सिटी में एक अनुष्ठान, एक स्पेशल मोमेंट, एक स्पेशल ओकेजन की प्रिपरेशन चल रही है। ये आयोजित की गई है कि उस देश की मतलब नॉर्वे की जो युवराज है जिनका नाम है हाकन, उनके हाथों द्वारा
हमारे जो है प्रोफेसर गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक, उनको क्या सम्मान दी जाएगी, अवार्ड दी जाएगी, हॉलबर्ग। उस अवार्ड के नेम है हॉलबर्ग। और इसकी जो प्राइस है, मतलब ये अवार्ड की जो मूल्य है 5,15,000, अगर इसको हम यूरो रुपीज़ में देखेंगे तो 4.6 करोड़ रुपीज़। ओके, फिर ये लास्ट जो थर्सडे थे उस दिन एक कमिटी गठित हुए थे, कमिटी प्रिपेयर हुए थे और उन लोगों ने गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक के नेम को पब्लिश की, ये प्राइज़ के विनर के लिए। विनर गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक, उनको ये सम्मान दी जाएंगे 5 जून को 2025 में। और ये प्राइज़ के, ये अवार्ड्स के, ये सम्मान के और एक अलग नेम है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के नोबेल के नाम से भी इसे जाना जाते हैं। तो इससे आपको और क्वेश्चन के आंसर पता चले। ये इन फ्यूचर हो सकता है कि हॉलबर्ग प्राइज़ को हम और किस नाम से जान सकते हैं, इसके लिए 4 ऑप्शंस दे सकते हैं इन PMCQ में, और अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से भी आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को पता है कि UGC नेट में गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक से हर साल रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पर्सपेक्टिव से भी गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक के ये टॉपिक भी करेंट अफेयर्स प्लस उनके जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक विशिष्ट व्यक्तित्व है, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी उनके एक पहचान है, सम्मान है, मान है, और उनके द्वारा ये बहुत सारे काम हुए हैं जो कि बहुत ही कमेंडेबल है। और वो हमारे लिटरेचर में, हमारे ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेस में, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में उनके एक बहुत ही बेहतरीन काम से हम उनको जाने जाते हैं लोग हैं। ठीक है, तो ये प्राइज़ को आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के नोबेल भी कहा जाता है। और ये प्राइज़ को उनके नाम घोषित होने के बाद बहुत सारे रिस्पेक्टेड पर्सन्स उनको बधाइयाँ दी है। यही मुझे आज शेयर करनी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों को प्राइज़, मतलब कौन सा प्राइज़ का नेम, प्राइस का जो मूल्य उसके बारे में भी पता चला, कौन सी कंट्री के कौन देने जा रहे हैं, कहाँ पे ये हो रहा है। बेर्जन यूनिवर्सिटी में, ये नॉर्वे के बेर्जन यूनिवर्सिटी में एक ये सेलिब्रेट की जाएंगी, उनको अवार्ड से सम्मानित की जाएंगे हाकॉन के द्वारा, युवराज हाकॉन के द्वारा, नॉर्वे की कंट्री के। तो इस तरीके से आप लोगों को 5-6 क्वेश्चंस पता चल गया। और इसको हम कौन से पुरस्कार से जानते हैं इसको भी, और किस दिन ये कमेटी बैठी थी, कि ये डिस्कस हुई थी, वो भी मैंने कह दी। और 5 जून को प्राइज़ मिलने वाला है 2025 में, ये भी मैंने कह दी। तो हम अभी वेट करेंगे 5 जून को, और अब हम प्रे करेंगे कि प्रोफेसर गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक को और नॉर्वे के बेर्जन यूनिवर्सिटी में ये ओकेजन, बहुत ये सेलिब्रेशन, मतलब ये सम्मानित जो पापस है, ये जो सेलिब्रेशन होने वाले हैं, ये बहुत अच्छे तरीके हो। भगवान की कृपा से सभी लोग स्वस्थ हो, मस्त हो, और ये अच्छे तरीके से हो जाए और इनको सम्मान मिल जाए, और सभी लोग इनको बधाइयाँ दे, और इनकी लंबी उम्र, स्वस्थता की, मतलब हेल्थ वेल्थ की एक कामनाएं करे। और गॉड ब्लेस ऑल, मतलब गॉड सभी को बहुत अच्छे और खुश रहे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। आज के एटाई बॉलर छिलो। प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए एसबी लिटरेचर के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थंबनेल और टाइटल को देख लेना, ये यूजीसी नेट के क्वेश्चन से ही रहेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स ऐड कर दूंगी मैं। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद एसबी लिटरेचर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट। सबाई भालो থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। নমস্কার।